Okay, my dear students, so last time you know that we had completed with the uh, energetics in which the different enthalpy changes they were present, and we discussed every type of the question as well. Okay, so today we are going to start with the equilibria. Okay, and whatever the questions you want to ask me from the energetics at the end of lesson, remind me. We will discuss those questions in the class. Okay, so if you got any question relating to the energetics, you can send it on the group. Okay, on the group, I'm going to open it and we'll discuss it with you. Okay, guys, so let's start with the next chapter today, that is the equilibria. So let's start with the equilibria. I'm going to make an equation up here, 2a plus 3b, okay, and this sign that is going to form 2c plus d, okay. And on the other hand, I'm going to make the same equation, 2a plus 3b, and arrow 2c plus d. So keep this thing in your mind that there are the two types of the reactions in nature. Okay. The first reaction in which you got this sign. Okay. This sign, that sign that is called as a reversible reaction. Reversible reactions. Okay. Whereas this sign, one arrow that shows the irreversible reaction. Irreversible reaction. Okay. So the two types of the reaction, you got the reversible reactions and you got the irreversible reaction. So two types of the reaction are there. What is the difference between them? The irreversible reaction, they do compete. Do compete. Okay. So do complete mean that at the end of reaction, you people are not having A and B. You only have C and D in the at the end. Okay. So these reactions, they do complete, the reactants, they do finish, whereas the products, they are the only thing which would remain after the reaction. But up here in the reversible reaction, these reactions, they never complete. They never complete. Never complete mean if you take A and B at the start, so what would happen? The reaction would start and A and B would start joining with each other to form C and D, and when a sufficient amount of C and D is formed, so this one would start breaking to form A and B again. So if you wait for 2 years or even 3 years, okay, so you always have A, B, C, and D in the reacting mixture. Okay, it is not possible that you are only having the C and D. You have A, B, C, D. So the reactants and the products things both are present in the reacting mixture. Whereas in this type of the reaction, you only got C and D. Okay, the reactants, they do finish, whereas the products, they are only formed. Okay. So it means what are the reversible reaction? If you want to define the reversible reaction, what would be the definition of it? The reactions which proceeds forward and backward. जो आगे और पीछे दोनों तरफ move करते हैं, उनको हम कहते हैं reversible reaction. Okay? So reversible reaction की इसका मतलब है definition की जो है वो क्या होती है? इसकी definition लिखते हैं. Definition, a reaction which proceeds forward and backward is called reversible reaction. Okay.
अब जहन में रखें कि जब भी कोई रिएक्शन मेरे बच्चों रिवर्सिबल होगा तो उसमें एक ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है जी। ठीक है, और उस पॉइंट को जो है वो हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम, सो डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? द स्टेज in a reversible reaction when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called dynamic equilibrium। ठीक है जी। तो जब भी कोई रिएक्शन इस तरह का साइन शो करेगा रिवर्सिबल का, तो उसमें हमेशा एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब ये फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ जो जा रहा है इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड, और ये जो पीछे की तरफ आ रहा है इसको हम कहते हैं बैकवर्ड। ठीक है, तो एक वक्त ऐसा आता है हर रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जितने सी और डी बन रहे हैं उतने ही टूट भी रहे हैं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर 10 जो है वो सी बन रहे हैं तो 10 सी जो है वो टूट भी रहे हैं। तो ओवरऑल वहां पे टेक्निकली आप कह लो कि रिएक्शन रुक जाता है टेक्निकली, लेकिन रुका होता नहीं है, चल रहा होता है। यानी आगे और पीछे जा रहा होता है, लेकिन टेक्निकली आपके पास कोई चीज जो है वो बढ़ नहीं रही होती। जितने सी बनेंगे उतने ही सी टूट भी जाएंगे। ठीक है जी। तो उस स्टेज को जो है वो हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। और अभी एक और चीज, जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें ये जो जिन चीजों को हम लोग रिएक्टेंट्स का नाम देते हैं, दीज थिंग्स दे वुड बिकम द रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी। और ये वाली जो चीजें हैं ये भी रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स नहीं कहना इनको। दीज आर कॉल्ड एज द रिएक्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। तो ये रिएक्ट करके ये बना रही है और ये रिएक्ट करके ये बना रही है, तो इनके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का वर्ड जो है वो टेक्निकली ठीक नहीं होता। लेकिन जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है बच्चों, उसमें ये चीजें जो हैं दीज आर रिएक्टेंट्स and these things they are called as the products, तो इनको products का नाम देते हैं। ठीक है जी। so you got reactants and you got products। तो मेरे बच्चों अभी तक हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज मैंने आपको बताया कि ये साइन रिवर्सिबल का साइन है, और ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते, उसमें ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा रिएक्शन मिक्सचर में रहते हैं। और दूसरी चीज, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब जो आगे और पीछे मूव करे। हर रिवर्सिबल रिएक्शन में एक ऐसी स्टेज आ जाती है व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दे बिकम्स इक्वल टू ईच अदर, उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और मैंने बताया कि ऐसा जो रिएक्शन होता है उसमें जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं उनके लिए रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट साइड पे जो चीजें हैं दीज आर द रिएक्टेंट्स ऑन राइट हैंड साइड। कहें इनके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वर्ड टेक्निकली ठीक नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं ये आपस में रिएक्ट कर रही होती हैं जी। एवरीवन गॉट इट माय डियर? ये इस चैप्टर का जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
और इसको हम लोग इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं जी। सो दिस इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम लॉ। ठीक है जी। नाउ माय डियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग केसी से जो है वो डिनोट करते हैं, केसी। सो व्हाट इज दिस केसी, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। सो लेट मी राइट an equation for you, 2a plus 3b is going to form 2c plus b। ठीक है जी। ये सपोज करें कि ये गैस है, ये एक्वस है, ये लिक्विड है और ये भी गैस है। ठीक है जी। ये मैंने क्यों लिखे हैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा कि उसकी वजह क्या होती है। अच्छा जी, अब हमें करना है कि ये जो साइन बना हुआ है, दिस साइन इज रिवर्सिबल। जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो इट रीचेस द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं केसी। तो केसी का जो है, मैं आपको एक देसी सा फॉर्मूला पहले बता रहा हूं। केसी का फॉर्मूला याद रख लो, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट्स इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स किसी भी चीज के लिए लगा दें तो ये कंसंट्रेशन को शो कर रही होती है। तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, ये एक देसी फॉर्मूला है, देसी फॉर्मूला यानी आपने समझने के लिए। यानी आप समझो, असल में ये चीजें प्रोडक्ट नहीं है, ये रिएक्टेंट ऑन राइट हैंड साइड है, ये रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन हम लोग चूंकि हमेशा इनको रिएक्टेंट, इनको प्रोडक्ट का नाम देते रहते हैं, तो लिहाजा प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर रखनी होती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप लोगों ने हमेशा नीचे रखनी है। असल चीज यहीं से शुरू हुई है, तो पहुंच के बाकी चीज तो सामने वो तो कॉपी भी करनी। ठीक है। अच्छा जी, तो केसी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ये देखिए प्रोडक्ट्स ये है, तो सी की कंसंट्रेशन सी लिख के इसके साथ ये ब्रैकेट डाल दे। ठीक है जी, और डॉट का साइन लगा दे, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट है कि ये मल्टीप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये ए की कंसंट्रेशन डॉट लगा दे और बी की कंसंट्रेशन। और दूसरा काम क्या करते हैं कि जो चीजें इनके मोल्स है वो इनकी पावर बना दें। यानी ये सी के साथ 2 लिखा हुआ है तो 2 इसकी पावर बन जाएगी। ए के साथ 2 लिखा हुआ है तो उसकी पावर 2, बी के साथ 3 लिखा हुआ है तो उसकी पावर 3 बन गई। तो मेरे बच्चों, ये आपका केसी का एक्सप्रेशन बन गया कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, और जो इनके साथ मोल्स हैं वो इनकी पावर बन जाते हैं। डी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है। ठीक है जी, तो वो 1 इसकी जो है वो पावर बन जाती है जी। डिड यू गेट इट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डिड यू गेट इट? यस सर, यस सर। अच्छा जी, तो आप इसकी यहीं से डेफिनेशन हम लोग बना लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और लॉ। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है, वो जरा गौर से देखने हैं आपको, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले मैं वैसे बता रहा हूं फिर मैं इसको लिख दूंगा। ये देखें, ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है ये कंसंट्रेशन है। ब्रैकेट का मतलब मैंने पहले ही बताया कंसंट्रेशन होता है, ऊपर भी कंसंट्रेशन है नीचे भी कंसंट्रेशन है। तो अगर ऊपर और नीचे जो है वो सेम यूनिट्स वाली चीजें हो तो उसको हम रेशियो कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है या केसी जो है ये रेशियो होती है, किस चीज की रेशियो होती है, ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट साइड, of the product of concentration of reactants on the right hand side to the concentration of reactants to the product of concentration of reactants on the left hand side raised to appropriate powers। यानी जो उनके मोल्स हैं वो उनकी पावर्स बन जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या होगी, द रेशियो
ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसको प्रोडक्ट्स ना ले लेना खुदा के लिए, मल्टीप्लाई में वर्ड यहाँ पे लिख के देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ concentrations of reactants on right hand side to the product, प्रोडक्ट का मतलब यहां पे भी मल्टीप्लाई है जी, ऑफ concentrations of reactants on left hand side raised to appropriate powers is called equilibrium constant और लॉ। ठीक है जी, तो ये मेरे बच्चों इसकी जो है वो डेफिनेशन बन गई। दूसरी चीज, ये केसी के यूनिट्स अगर तुम लोगों ने निकालने हैं, केसी के यूनिट्स, तो केसी के यूनिट्स हर इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होते रहते हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, केसी के यूनिट्स निकालने का तरीका, वो सारे बच्चे जरा गौर से सुन लें इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखिए केसी के यूनिट्स निकालने का तरीका ये है कि ये जो कंसंट्रेशन है इसके यूनिट्स हमेशा होते हैं मोल पर डीएन क्यूब। तो तुम लोग मोल पर डीएन क्यूब लिख लिया करो, लिख के अब क्या करने कि ये जो ऊपर पावर्स दी हुई है इनको ऐड कर लो। तो 2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 प्लस 1 और इसको माइनस करते हैं, नीचे वाली पावर्स को ऐड कर दो 2 और 3, तो 2 प्लस 3। लेकिन कब ये करना है, अगर ये सारी चीजें जो हैं या तो ये गैस हैं या ये लिक्विड है या ये एक्वस हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज सॉलिड आ जाती है तो सॉलिड की कभी भी कंसंट्रेशन नहीं होती, तो उसको इसमें लिखोगे नहीं। मसलन अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा होता सी जो है ये सॉलिड है, पहली चीज, ठीक है, ये सॉलिड लिखा होता, तो भाई ये सी को तुमने यहाँ पे लिखना ही नहीं था, ये लिखना ही नहीं था, क्योंकि कभी भी किसी सॉलिड चीज की कंसंट्रेशन नहीं होती, उसको लिखना ही नहीं यहाँ पे। और उसके जब यूनिट्स बनाएंगे तो सिर्फ डी की कंसंट्रेशन आएगी, तो उस वक्त क्या यूनिट बनेंगे 1 1 माइनस 2 एंड प्लस 3 5। तो उनको सॉल्व करते 1 माइनस 5 माइनस 4 पावर आ जाती, तो उसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाना था यूनिट्स का। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मौजूद है ये सी जो है वो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यार, लिक्विड लिखा हुआ था, लो जी लिक्विड है सपोज करो, तो ये यहाँ पे लिखा जाएगा सी की कंसंट्रेशन स्क्वायर है। ठीक है, तो हमने ये इसको 2 और 1 3 और ये 2 और प्लस 3 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मोल पर डीएन क्यूब और क्या पावर बन गई 3 माइनस 5, कितना आ गया -2, तो -2 को इसके साथ सॉल्व करने तो क्या बन जाएगा मोल की पावर -2 और डीएन की पावर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +6 आ जाएगा। तो मेरे बच्चों ये आपके जो है वो केसी के यूनिट्स होंगे फॉर दिस इक्वेशन, और केसी के यूनिट इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, आप लोग इक्वेशन को देख के भी यूनिट्स बना सकते हैं। +2HCl is going to form MgCl2 plus H2। ये गैस है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है जी, अब मुझे इसके यूनिट्स बनाने हैं। केसी का फॉर्मूला तो हम लोग लगा देंगे, सॉलिड चीज को कभी भी नहीं यूज करते कंसंट्रेशन बनाने में। ठीक है, तो हमें केसी के यूनिट्स निकालने हैं। केसी के यूनिट्स कैसे निकालेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके साथ पावर्स क्या क्या लिखी हुई है, ये 1 और ये 1 क्या लिखी हुई है
2 हो गई, ठीक है। तो मोल पर डीएम क्यूब लिख ले, ठीक है। तो ये राइट साइड में जो है ये 1 और 1 2 हो गई, 1 + 1 2, और माइनस कर दे लेफ्ट हैंड साइड की पावर में से, तो ये सॉलिड है, ये कट गया, इसको नहीं यूज करना, तो ये 2 लिखा हुआ है, तो 2, तो 2 ये ऐड करके ये भी 2 बन गया, -2 में से 2 माइनस करेंगे 0, तो 0 किसी भी चीज की पावर हो तो नो यूनिट्स, तो भाई इस इक्वेशन के कोई यूनिट्स नहीं बनेंगे, समझ आती है। अगर यहां पे सपोज करें एक और इक्वेशन में लेता हूं, 2SO2 + O2 इज गोइंग टू फॉर्म 2SO3, ये चीजें गैस की तरह सपोज करें सारी, तो कोई मुझे बताएगा कि इसके यूनिट्स क्या होंगे, कम ऑन यहीं से अंदाजा करके बता दूं। सबसे पहले मोल पर डीएम क्यूब लिख लो, इधर वाली जो पावर्स हैं 2 माइनस, और ये 2 and 1 3, तो ये क्या बन गया -1, तो -1 को इसके साथ सॉल्व करने मोल -1 और डीएम +3, तो ये इसके यूनिट्स बन गए एसी के यूनिट्स, समझ लगी है मेरे बच्चों। यस सर। यस सर। तो अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि भाई अगर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसका केसी निकालना है, तो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, लेकिन वो चीजें सॉलिड ना हो, सॉलिड हो तो फिर भी वही लिख सकते हैं उसको, उसको बीच में से खत्म कर देते हैं, वो चीजें गैस लिक्विड या एक्वस हो तो तब लिख सकते हैं कंसंट्रेशन। तो सी की कंसंट्रेशन इसके साथ 2 है तो वो पावर बन गया, डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन इसके साथ 2 लिखा हुआ है स्क्वायर बन गया, बी की कंसंट्रेशन इसके साथ 3 लिखा हुआ है क्यूब बन गया, ठीक है जी। और अगर यूनिट्स निकालने हो तो मोल पर डीएम क्यूब का वर्ड लिख के ये ऊपर वाली पावर्स को ऐड कर दो और माइनस कर दो नीचे वाली पावर्स में से, तो जो भी आंसर आए उसको उसके साथ जो है वो सॉल्व कर लो, तो यू विल गेट द यूनिट्स ऑफ केसी, ठीक है बच्चों। और ये मैंने आपको बता दिया है कि केसी की डेफिनेशन क्या होती है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम लॉ ये केसी को कहते हैं। तो केसी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ऊपर भी कंसंट्रेशन है नीचे भी, सॉरी इट इज द रेशियो, ये रेशियो है, तो ऊपर कंसंट्रेशन नीचे कंसंट्रेशन, रेशियो है किस चीज की, ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉरी ऑन राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वाली चीजें ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड वाली जो चीजें हैं उनका जो प्रोडक्ट है वो नीचे लिखते हैं, और जो उनके मोल्स हैं वो पावर बना देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द केसी, ठीक है। और अगर यूनिट्स बनाने हो, मैं बार बार कह रहा हूं केसी के फॉर्मूले को, अगर सॉलिड चीज होगी तो भाई वो सॉलिड चीज केसी के फॉर्मूला में नहीं आती, ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो प्लीज डोंट डू दिस काइंड ऑफ द मिस्टेक, ओके। ओके मेरे बच्चों, यहां पे एक और चीज दे रहा हूं, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस HCl aqueous reversible reaction is going to form AgCl solid plus HNO3, this is aqueous, ठीक है जी। कोई मुझे बताएगा कि इसके केसी का क्या बनेगा और उसके यूनिट्स क्या होंगे, केसी इज इक्वल टू क्या लिखूं, बताते हैं जरा मुझे। पहली चीज तो देख लें कि कोई चीज सॉलिड तो नहीं है, ये सॉलिड है इसको कट कर दें, इसकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो सिर्फ HNO3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रिएक्टेंस है दोनों, तो AgNO3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे और इनटू HCl की कंसंट्रेशन लिखेंगे। और अगर इसके यूनिट्स बनाने हैं तो यूनिट्स बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मोल पर डीएम क्यूब लिख लेंगे और ऊपर वाली पावर 1 है तो 1 माइनस कर देंगे, नीचे वाली पावर्स में है वो 1 + 1 है, तो इनको सॉल्व करें तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो -1 को इसके साथ सॉल्व करने हैं, तो मोल -1 डीएम -3 और -1 मल्टीप्लाई होके +3 बन जाएगा, तो ये आपके यूनिट्स हैं फॉर दिस इक्वेशन। तो केसी के यूनिट्स इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज करते रहते हैं, कई दफा ये भी होता है कि दोनों चीजें सेम होती हैं, ऊपर भी और नीचे भी माइनस होके 0 आंसर आ जाता है, तो जब 0 पावर आ जाए तो वही उसके यूनिट्स नहीं भी होते हैं, ओके। ये मैं क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को देखते जाएं और इनको हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है।
अब जरा क्वेश्चन देखते जाइए, क्वेश्चन मजे का क्वेश्चन है, ठीक है, देखने में लग रहा है जैसे बहुत टफ है, लेकिन दिस इज वेरी इजी। इसमें सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे जो है वो नए हैं, उनके लिए ये चीज नहीं होगी। हम लोगों ने जी स्केलेटल फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो जहां पे कोई कॉर्नर हो वहां पे कार्बन होता है, तो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे होते हैं जरूरत के मुताबिक। जितने बॉन्ड कम हो उतने हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ देखें जी, दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो दो बॉन्ड कम है, तो दो हाइड्रोजन आ गए लाइक दैट। इसके साथ भी दो हाइड्रोजन आ गए लाइक दैट, और इसके साथ भी दो हाइड्रोजन आ गए लाइक दैट। ठीक है जी, तो ये इसका जो है ये फॉर्मूला बन गया, स्केलेटल फॉर्मूला है ये। अब इसमें ये हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये चीज पढ़नी है कि स्केलेटल फॉर्मूला में जहां पे कोई कॉर्नर हो वहां पे कार्बन होती है, और कार्बन के साथ जो है वो जरूरत के मुताबिक हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कार्बन के साथ दो दो लाइनें लगी हुई का मतलब दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो दो बॉन्ड कम है तो दो दो हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये C3H6 बन जाता है जी। हमें वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन की हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। फॉर्मेशन की इक्वेशन बनेगी, कार्बन सॉलिड है, तीन कार्बन है, और दूसरी चीज H2 गैस फॉर्म में है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 2 6 लिख लो। तो ये इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे उसने बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी का। तो जब बॉन्ड एनर्जी का जिक्र किया हो तो हमेशा ERP लगाते हैं। तो भाई तुम लोगों ने इसमें ERP लगाना है, enthalpy change of reaction that is equal to reactant minus product। तो रिएक्टर में ये कार्बन आ रहा है, तो कार्बन की एटमाइजेशन उसने हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एटमाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट इज 717। तो यहाँ पे लिख लें 717, और यहाँ पे तीन कार्बन है तो टाइम्स 3 कर दें इसको, ठीक है जी। और आगे प्लस वो आगे कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन भी उसने हमें दी हुई है। फॉर्मेशन यानी पूरी फॉर्मेशन, इस पूरे रिएक्शन की फॉर्मेशन उसने हमें बताई हुई है कि इस रिएक्शन का यानी डेल्टा HR जो है वो कितना है, +53.3। तो ये डेल्टा HR की जगह +53.3 लिख दो, ये डेल्टा HR की जगह। आगे वो कह रहा है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इज 436। तो ये H2 के साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स 436 कर लो, ठीक है जी। ये रिएक्टेंट्स पूरे हो गए माइनस प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में भाई चेक करो, कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, ये एक, ये दो, और ये तीन। तीन कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइम्स X करने और प्लस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो 6 टाइम्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो 410 दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो 6 टाइम्स 410 लिख लो जी। तो इसको मेरे बच्चों तुम लोगों ने अब सॉल्व करने हैं, तो कैसे आएगा, +53.3 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या आता है, 3 टाइम्स 717 प्लस 3 टाइम्स 436 कितना आ गया, 34, कितना 3459। ठीक है जी, ये ब्रैकेट में करते हैं इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और माइनस कर दें, -3x हो गया, और इसको जरा मल्टीप्लाई कर दें यार, 6 टाइम्स 410, ये कितना आ गया, -2460 आ गया जी ये, ठीक है जी। क्योंकि ये माइनस जब हम ओपन करेंगे तो ये -3x हो गया, और ये वाला माइनस इसके साथ मिलके माइनस हो गया, -2460, ठीक है जी। अब इनको उठा के इधर ले आए, +53.3, ये माइनस है उधर जाके पॉजिटिव हो गया 2460, ये इधर पॉजिटिव है इधर आके माइनस हो गया, -3459 इज इक्वल टू 3x। ठीक है जी, तो ये पहले सॉल्व करके मुझे बताएंगे कितना आता है, 1035.7 और इज इक्वल टू 3x है, तो 3 को इधर डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 3 कट गया, बोलो कितना आ गया, कितना 345, 345 ये आ रहा है तकरीबन।
तो ये सी दैट इज योर आंसर, यानी 345 का मतलब कि 351 के आसपास है। ठीक है जी, सो दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये एक और क्वेश्चन भेजा हुआ है, ये देखें जी, ये क्वेश्चन है, ethanol is increasing being used as a fuel for cars, the standard enthalpy change of formation of carbon dioxide is this one। ये आपको फॉर्मेशन की वैल्यूज दी हुई है और कंबस्टन, उसमें एथानॉल की व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ एथानॉल। तो पहले एथानॉल की कंबस्टन की इक्वेशन लिख लेते हैं, C2H5OH। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। इसको बैलेंस करने कार्बन 2 है, इधर 2 लिखते हैं, हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, इधर 3 लिखते हैं। ऑक्सीजन मिलने कितने हैं, 2 2 4 एंड 3 7, 7 में से एक ऑक्सीजन यहां से आया, बाकी 6 बचे, तो 3 2 6। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब ये इक्वेशन कंबस्टन की है, लेकिन उसने सारी वैल्यूज आपको कौन सी दी हुई है, फॉर्मेशन की दी हुई है। तो भाई जब फॉर्मेशन की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में तो ईपीआर निकालें। ठीक है, तो ईपीआर का मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी है, -393। ठीक है जी, उसके बाद ऐड कर ले 3 टाइम्स वाटर है, तो वाटर की -286 है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर ले, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में एथानॉल, एथानॉल का एक ही मोल है, तो ये -277। ठीक है जी, और उसके बाद ये एलिमेंट है, इसकी तो वैसे ही जीरो होती है, तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आता है। -1367। -1367, तो बी दैट इज योर आंसर। तो तुम्हें पता चल गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ये एक और क्वेश्चन जो है वो इस बच्चे ने हमें भेजा हुआ था, ये देख लें। इसमें ये कंबस्टन की वैल्यूज एक तो दी हुई है उसने, ठीक है जी, कंबस्टन की वैल्यूज, ये कंबस्टन की वैल्यूज हैं। और दूसरा ही कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन टू बी -140। तो पहले तो इथेन की फॉर्मेशन बना लेते हैं, तो C2H6 है, इसकी फॉर्मेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, कार्बन सॉलिड और प्लस हाइड्रोजन गैस, इसको बैलेंस करने ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। ठीक है जी, ये फॉर्मेशन की इक्वेशन है और कंबस्टन की वैल्यूज दी हुई है, तो ERP लगा दें। ERP का मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट तुम्हारे पास जो है वो कार्बन है, कार्बन की कंबस्टन -394 है और इसके साथ 2 लिखा हुआ है, तो 2 टाइम्स -394 और ऐड करनी हाइड्रोजन के साथ भी 3 लिखा हुआ है, तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन की है -286। ठीक है जी, इसको इस तरह बंद कर लें और आगे ही कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, यानी ये डेल्टा एच की वैल्यू उसने निकाली है -140। तो वो पूछ रहे हैं व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन ऑफ इथेन। ठीक है जी, तो कंबस्टन की वैल्यू निकालनी है, यानी माइनस प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में कंबस्टन की वैल्यू इसकी निकालनी है, तो इसको सॉल्व कर लो मेरे बच्चों, सिंपल सी बात है।